ایرانین پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی پوری ہی دنیا میں اس وقت ان کی حد سے زیادہ چرچا ہے۔ چرچا اس لیے کیونکہ 19 مئی 2024 کے دن ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس حادثے میں پریزیڈنٹ کے علاوہ ان کے کچھ اور ساتھیوں کی بھی جان گئی، جس میں ایران کے فارن منسٹر بھی شامل تھے۔ ویسے دوستو، ان کی وفات کی اتنی زیادہ چرچا ہونے کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ پچھلے کچھ وقت سے یہ مسلم دنیا میں کافی زیادہ ایکٹیو نظر آئے، وہ چاہیں فلسطین کا معاملہ ہو یا مسلم دنیا کا کوئی دوسرا ایشو، ہر معاملے میں ہی اگر پوری طرح سے نہیں تو کم سے کم باقی مسلم دیشوں سے زیادہ ایکٹیو نظر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم دنیا میں رہنے والے زیادہ تر لوگوں کے دلوں میں ان کی ایک الگ پہچان اور اہمیت بن چکی تھی، اور مسلم دنیا کے علاوہ بھی ویسے بھی یہ ایران جیسے ایک بڑے اہم اور طاقتور دیش کے پریزیڈنٹ تھے، تو ظاہر ہے دنیا بھر میں چرچا ہونا لازمی بات ہے۔ ایران کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ایران کے دوسرے سب سے طاقتور انسان تو تھے ہی، مگر ساتھ ہی بہت جلد ہی ایران کے سب سے طاقتور انسان یعنی سپریم لیڈر بھی بننے جا رہے تھے، کیونکہ ان کی کامیابیوں اور ان کی بڑھتی ہوئی شہرت کو دیکھ کر لگ بھگ یہ کنفرم ہو چکا تھا کہ موجودہ سپریم لیڈر علی خامنئی کے جن کی عمر آلریڈی حد سے زیادہ ہو چکی ہے، ان کے بعد اس گدی پر ابراہیم رئیسی ہی بیٹھیں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ ابراہیم رئیسی تھے کون؟ آخر کیسے ایک مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہونے والا بچہ کہ جس کے فادر یعنی والد بھی اس کو کم عمر میں چھوڑ گئے تھے، وہ ایران کی اتنی طاقتور پوزیشن تک پہنچ گیا؟ صرف ایران نہیں بلکہ اس کا نام تو اب پورے دنیا کے سب سے طاقتور نیتاؤں کی لسٹ میں گنا جانے لگا۔ سوال یہ بھی ہے کہ وہ ابراہیم رئیسی کہ جن کی موت پر پورا ایران آج آنسو بہا رہا ہے، ان کی زندگی کا وہ کون سا پہلو تھا، یا اگر ویسٹرن میڈیا کی زبان میں کہوں تو وہ کون سا کانڈ تھا کہ جس کی وجہ سے ویسٹرن میڈیا یا ویسٹرن نیتا ان کو بوچر آف تہران یعنی کہ تہران کا قصائی کہتے ہیں؟ تو چلیے آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم ابراہیم رئیسی صاحب کی پوری ہی زندگی پر نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ میرا سیکنڈ چینل کہ جس پر میں ہسٹری نہیں بلکہ مینلی نیوز وغیرہ کور کرتا ہوں، اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ڈسکرپشن اور کامنٹس باکس میں لنک مل جائے گا، باقی یوٹیوب پر ساجد زہیب لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پر واپس آئیں تو ہماری اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے سن 1960 کے دور سے، کہ جب ایران کے دوسرے سب سے بڑے شہر مشہد کے اندر پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی کی پیدائش ہوئی۔ ان کے فادر ایک شیعہ عالم ہوا کرتے تھے، مگر جس وقت ابراہیم رئیسی کی عمر صرف 5 برس تھی تب ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ شیعہ گروپ کے مطابق ابراہیم رئیسی کی جو بلیک پگڑی ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی کہ پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل سے ہیں۔ اپنے فادر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہی انہوں نے بھی اپنی تعلیم کا آغاز ایک مدرسے سے کیا۔ یہ وہی دور تھا کہ جب ایران کے اندر آلریڈی رضا پہلوی کی اس حکومت کے خلاف پروٹیسٹ شروع ہو چکے تھے کہ جو حکومت ویسٹرن کنٹریز کے اشارے پر چلا کرتی تھی۔ ان سارے پروٹیسٹ اور اس پورے آندولن میں ابراہیم رئیسی نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1979 یعنی 1979 میں فائنلی یہ آندولن کامیاب ثابت ہوا، رضا پہلوی کی حکومت کا تختہ پلٹ ہو گیا اور وہ نیا ایران وجود میں آیا کہ جس کو آج کے دور میں ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس کرانتی کا حصہ رہنے والے ابراہیم رئیسی نے کرانتی کے بعد بھی اپنی پڑھائی لکھائی جاری رکھی اور اس کے بعد ہی انہوں نے لاء میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی اور اس کے بعد جوڈیشری یعنی کہ نیائے پالیکا کا حصہ بن گئے۔ اس دور تک بھی ابراہیم رئیسی صاحب کی عمر صرف اور صرف 25 برس تھی۔ اسی دور میں ہی اچانک سے ایران کے اندر ایک مجاہدین خلق نام کے اسلامی بامپنتھی گٹ کا ابھار ہوا۔ ویسے یہ کافی پرانا تھا، 1965 میں اس کی استھاپنا کی گئی تھی اور اس نے کرانتی میں بھی شاہ کی حکومت کے خلاف خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، مگر پھر بعد میں ہوا یہ کہ جب اس کے لیڈر مسعود رجاوی کو راشٹرپتی کا چناؤ لڑنے سے روکا گیا تو یہ اس نئی اسلامک رجیم کے ہی خلاف ہو گیا۔ سرکار اور اس گٹ کے بیچ جب تناتنی اور بڑھی، پھر تو اس گٹ نے شستر ودروہ یعنی کہ ہتھیاروں کے ذریعے سے ہی اپنا کام شروع کر دیا۔ دوسری طرف اب اس سرکار نے بھی اس گٹ سے نپٹنے کے لیے پورا ایک آپریشن شروع کر دیا۔ حالات بگڑتے ہوئے دیکھ کر اس گٹ کے مکھیا تو دیش چھوڑ کر بھاگ گئے، مگر اس گٹ نے آگے تک سرکار کے خلاف مورچہ کھلا رکھا۔ ایون عراق اور ایران کی جب وار ہوئی تو اس میں بھی اس گٹ نے صدام حسین کے ساتھ مل کر کئی بار ایران کے اوپر کارروائی کی۔ ایران کی سرکار نے بھی مانو اب ان کو ایک غدار کے طور پر ٹریٹ کرنا شروع کیا اور اسی حساب سے ان کے خلاف کریک ڈاؤن اسٹارٹ کیا گیا۔
जगह जगह पर गिरफ्तारियां हुई और हर तरह से इनके ऊपर शिकंजा कसा जाने लगा। इवन वेस्टर्न मीडिया तो ईरान के एक जेल के बारे में दावा करता है कि उसमें 300 लोगों को रखने की कैपेसिटी थी। इसी क्रैकडाउन की वजह से इस कैपेसिटी को पहले 300 से 1500 में बदला गया और बाद में तो एक वक्त में इस जेल के अंदर 15,000 लोगों को रखा गया था। 1988 में जब इराक और ईरान की जंग बंद हो गई तो उसके बाद बाकायदा फतवा जारी किया गया कि जिसने भी इस्लामिक रजीम के खिलाफ गद्दारी की थी उसने अल्लाह से गद्दारी की थी और उन लोगों की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। बस उसी के बाद ही इन जेलों में बंद लोगों की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई और जांच पड़ताल के बाद जिसके बारे में भी ये साबित हो जाता कि उसने मुखालिफ गुट का साथ दिया था उसको फौरन उस जगह पर भेज दिया जाता था कि जहां पर मौत की सजा दी जाती थी। ये पूरा मामला अगले 5 महीने तक चलता रहा था और इस पूरे दौर के अंदर लगभग 29 से 30 हजार लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। अब इस पूरे मामले में प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का एंगल ये है कि दरअसल उस दौर में ईरानियन गवर्नमेंट की तरफ से जो एक लॉ कमेटी बनाई गई थी इस पूरे मामले को देखने के लिए, तो इब्राहिम रईसी उस कमेटी के 4 जजों में से एक जज थे, यानी जो जज गद्दारी साबित होने पर फैसला सुनाया करते थे और उसी फैसले पर ही फिर मौत की सजा को अंजाम दिया जाता था। और इसी पूरे मैटर की वजह से ही वेस्टर्न मीडिया में इब्राहिम रईसी को द बूचर ऑफ तेहरान का नाम दिया गया, यानी कि तेहरान का कसाई। हालांकि दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये तो सिर्फ वेस्टर्न नैरेटिव है, वरना ईरान की हुकूमत की तरफ से तो हमेशा इन तमाम चीजों से इनकार किया जाता रहा है। उनके मुताबिक ये सब कुछ वेस्टर्न मीडिया की तरफ से सिर्फ इस्लामिक रजीम की इमेज खराब करने के लिए किया गया है और खुद इब्राहिम रईसी की तरफ से भी इस पूरे मामले से हमेशा इनकार किया गया है। 1990 के दशक में इब्राहिम रईसी को जनरल इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया बनाया गया, जिसका काम होता है सरकारी एजेंसीज को देखना कि वो कानून के हिसाब से काम कर रही हैं या फिर नहीं। ये 2004 तक GIO में रहे और उसके बाद 2004 से 2014 तक ये फर्स्ट डिप्टी चीफ जस्टिस ऑफ ईरान रहे। 2014 से 15 के बीच उनको ईरान का अटॉर्नी जनरल भी बनाया गया। इसके बाद इनको अस्तान कुद्स रजावी नाम के एक ट्रस्ट का चेयरमैन बना दिया गया। ये दरअसल वही ट्रस्ट है कि जो ईरान की अहम और खास दरगाहों की देख रेख करता है, या कह सकते हैं कि उनको कंट्रोल करता है। 2019 में ये ईरान के चीफ जस्टिस बने और फिर 2021 में फाइनली इन्होंने ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का फैसला किया और 72% के साथ जीतकर ईरान के राष्ट्रपति बने। दोस्तों, इब्राहिम रईसी साहब की पर्सनल जिंदगी से रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिकली मौजूद नहीं है, सिर्फ इस बात के कि उनकी जो वाइफ हैं जमीला इल्मुल हुदा, वो इब्राहिम रईसी साहब की तरह ही हद से ज्यादा काबिल हैं, एक स्कॉलर, राइटर और लेक्चरर हैं और ईरान की शाहिद बहश्ती यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाती हैं। इसके अलावा इनके जो ससुर हैं वो भी मशहद की एक मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ाते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर इब्राहिम रईसी ने इतने कम वक्त में ईरान के अंदर ऐसा भी क्या किया कि उनको इतनी ज्यादा शोहरत मिली और उनका इतना ज्यादा असर बढ़ गया कि उनको तो अब डायरेक्ट अली खामनाई का असली सक्सेसर यानी कि सुप्रीम लीडर की गद्दी का अगला हकदार माना जाने लगा। तो दोस्तों, वजह ये थी कि 2021 में जब इब्राहिम रईसी ने ईरान की गद्दी संभाली तो उस वक्त ऑलरेडी ईरान वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस की वजह से काफी लड़खड़ा रहा था। उनके ऊपर सबसे पहली जिम्मेदारी तो यही थी कि या तो वो इन सैंक्शंस को कम कराएं या फिर कोई ऐसा तोड़ निकालें कि जिससे इन सैंक्शंस का असर ही खत्म हो जाए। इब्राहिम रईसी के दौर में लगे हुए सैंक्शंस कम या फिर खत्म तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने इसका तोड़ जरूर निकाला, जिससे ये सारे ही सैंक्शंस लगभग बेअसर दिखने लगे और इसका तोड़ इन्होंने डिप्लोमेसी से निकाला। यही वजह है कि बहुत सारे लोग इनको ईरान का अब तक का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक खिलाड़ी भी मानते हैं। इन्होंने सबसे पहले तो चीन की मदद से उस सऊदी अरबिया से ही हाथ मिला लिया कि जिसके साथ ईरान की दोस्ती फ्यूचर में कभी भी लगभग नामुमकिन मानी जाती थी। UAE के साथ भी रिश्ते अच्छे किए। इसके अलावा इंडिया के जो दुनिया की नई उभरती हुई ताकत है उसके साथ भी इन्होंने हद से ज्यादा मजबूत रिश्ते बनाए। बल्कि इब्राहिम रईसी के दौर में ये भी कह सकते हैं कि इन्हीं की वजह से इंडिया और ईरान के रिश्ते हिस्टोरिकली सबसे ऊंचाई पर पहुंच गए। खुद इंडिया के मुताबिक भी अभी जो चाबहार पोर्ट डील
हुई थी, जिसको हिस्टोरिकल माना गया, जो इतनी बड़ी डील थी कि अमेरिका को धमकी तक देना पड़ गई, वो भी इब्राहिम रईसी की वजह से ही कामयाब हो पाई थी। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ईरान के बीच 2009 में एक गैस की पाइपलाइन बनाने का समझौता हुआ। ईरान ने तो अपनी साइड की 2011 तक कंप्लीट भी कर ली, मगर पाकिस्तान बनाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर अमेरिका का प्रेशर था और वो बार बार यही कह रहा था कि सैंक्शंस की वजह से हम कैसे बनाएं। मगर अपने बिल्कुल आखिरी दौर में इब्राहिम रईसी ने जो पाकिस्तान का दौरा किया, उससे ये कंफर्म हो चुका था कि पाकिस्तान वो गैस पाइपलाइन बनाने जा रहा है। चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया का एक ऑपोजिट ब्लॉक, मतलब जो अमेरिका के एम्पायर को चैलेंज करने के लिए ही तैयार हुआ है, वो दुनिया के सामने कम्प्लीटली उभर कर इन्हीं के दौर में आया। इधर जब रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई, जिसके शुरुआत में यही महसूस हो रहा था कि रशिया आसानी के साथ यूक्रेन को हरा देगा, मगर कुछ वक्त के बाद ही जब पूरे यूरोप और अमेरिका ने बड़ी तेजी के साथ यूक्रेन को सपोर्ट करना शुरू किया, तो फिर रशिया उलझने लगा। इवन एक वक्त तो ऐसा लगा कि मानो रशिया ही पीछे की तरफ जा रहा है, जिसके बाद अचानक से फिर जंग में बड़ा मोड़ आया और रशिया ने बड़ी तेजी के साथ बढ़त बनानी शुरू की। वेस्टर्न मीडिया ने जब रशिया के इस कमबैक पर रिसर्च की, छानबीन की और ये पता लगाने की कोशिश की कि रशिया इतने सारे देशों को अकेले कैसे टक्कर दे रहा है, तो फिर राज ये निकल कर सामने आया कि ईरान लगातार उसको ड्रोन्स वगैरह की सप्लाई कर रहा है, जो जंग में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये पहली बार था कि जब अपने इलाके यानी मिडिल ईस्ट की राजनीति में ही हमेशा उलझे रहने वाला ईरान डायरेक्ट वेस्टर्न कंट्रीज की किसी वॉर में इन्वॉल्व हो रहा था। ईरान ने तो हमेशा इस जंग में अपनी किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट से इनकार ही किया है, मगर जाहिर है पूरी दुनिया हकीकत जानती है। 7 अक्टूबर 2023 के दिन जब हमास ने तूफानुल अक्सा नाम का एक ऑपरेशन इजराइल के ऊपर लॉन्च किया, तो इस ऑपरेशन पर खुद इब्राहिम रईसी ने हमास को शाबाशी दी। इवन लगातार हमास को सपोर्ट करना जारी रखा। जब इजराइल के हमले गाजा के ऊपर तेज हुए, तो राष्ट्रपति ने धमकियां भी दी। ईरान खुद तो डायरेक्ट इस जंग में नहीं कूदा, लेकिन उसने अपने सारे प्रॉक्सीज को एक्टिव किया कि जिससे इस जंग में बड़ा मोड़ आया। मार्च अप्रैल के महीने में आते आते हालात और भी ज्यादा बिगड़ चुके थे। सीरिया में एम्बेसी पर अटैक के बाद तो मानो ईरान ने हिस्ट्री में पहली बार इजराइल के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया, और ये भी इब्राहिम रईसी के दौर में हुआ। इसके अलावा ईरान में होने वाला वो हिजाब प्रोटेस्ट कि जिसने पूरी दुनिया का ध्यान ईरान की तरफ खींचा था, और जो भले ही उतना बड़ा तो नहीं था कि जितना बड़ा चलाकर वेस्टर्न मीडिया हमको दिखा रहा था, लेकिन फिर भी इतना बड़ा जरूर था कि जिसने ईरान को हिला कर रख दिया था। और ये सब कुछ भी इब्राहिम रईसी के दौर में ही हुआ था। अपनी मौत से चंद घंटे पहले दिए गए एक बयान में भी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी फिलिस्तीन की मदद का वादा कर रहे थे, जिसमें उनको कहते हुए सुना जा सकता था कि फिलिस्तीन मुस्लिम दुनिया का पहला और सबसे बड़ा मुद्दा है। आखिरकार 19 मई सन 2024 के दिन 63 साल की उम्र में इन्होंने हमारी इस दुनिया को अलविदा भी कह दिया। फिलहाल ये थी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की कहानी। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।